ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं, डीके शिव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं घटना को लेकर के, सुनिए। ಪ್ರೊಸಿಷನ್ಗಳಿತ್ತು, 1 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಬರೀ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ जितना हमें समझ में आया है आपको समझा देते हैं। डीके शिव कुमार शायद यही कहना चाह रहे थे कि कार्यक्रम को लेकर के रूपरेखा पहले से तैयार की गई और मुख्यमंत्री और मैं दोनों मिलकर के इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। जो कुछ भी कार्रवाई होगी आगे आपको सूचना दी जाएगी। तो आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, मॉब मैनेजमेंट के लिए कुछ सिविलियंस को भी रखा गया था, उनके भी घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं आप देखिए। I'm also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients, and only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. What is at present? Yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospital. Any numbers on the death? No, I can't. Only 5,000 police personnel were deployed, sir. What you said, the crowd that came in was running into thousands, sir. Was this enough? It was not thousands, it was lakhs. No. See, Nodi. BJP is saying, sir, it was ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि इस समय हो सकता है कि वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मौजूद हैं, क्योंकि इसमें वो जिक्र साफ तौर पर यही कर रहे हैं कि वो सीधे हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पर जो घायल हैं उनकी अपडेट लेने वाले हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इसके प्रति उन्होंने खेद भी प्रकट किया और सीधे तौर पर कह रहे हैं क्योंकि मॉब जो है वो अपेक्षा से ज्यादा वहां पर इकट्ठा हो गया। इस वजह से बेंगलुरु के अंदर जो मेट्रो सर्विसेज हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आसपास जितनी भी मेट्रो लाइंस हैं वो ठप पड़ गई हैं, उनको भी वापस से रीस्टार्ट करने की पोजीशन में प्रशासन लगातार है और कोशिश कर रहा है कि मॉब को वहां से क्लियर किया जाए। इस दौरान डीके शिव कुमार इस बात को भी कहते नजर आए हैं कि मैं यहां से सीधे हॉस्पिटल जाऊंगा और जो भी कार्यक्रम चल रहा था वो सिर्फ 10 मिनट के लिए एग्जीक्यूट हुआ है और उसको वहीं पर रोक दिया गया है। हमने आगे के कार्यक्रमों में भी कट ऑफ किया है। Tragedy incident in Bengaluru stampede in RCB celebration time. What do you say? State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major state government was more interested in publicity rather than the
So this has resulted in the death of more than 11 people. And some more youths, they are still serious. They are inside ICU also. I just spoke to one of the victims. No police was there inside. Ambulance facility was not there. And they themselves were rushed to the hospital, to the Boring hospital now. So I demand Chief Minister to take up the responsibility, and he should refer the matter for the judicial inquiry and let Chief Minister decide who has to take up the responsibility. Let Chief Minister decide. But he has to refer the matter to the judicial inquiry. We have party president of BJP, Mr. तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जिस तरह की भगदड़ की स्थिति देखने को मिली, आपने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सुना। उन्होंने साफ तौर पर हॉस्पिटल जाने का जिक्र किया और कार्यक्रम में कट ऑफ का भी जिक्र किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी मौजूदा समय में राज्य में जो विपक्ष की स्थिति में है, बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सरकार की तरफ से किया गया और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पर था, स्टार्स के वेलकम में था, जबकि आम लोगों की जान को उन्होंने बहुत ज्यादा केयरफुली नहीं लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बेयर नहीं किया है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इस दौरान बीजेपी विपक्षी दल तमाम वो जांच की मांग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच के बाद जिस तरह की स्थिति क्लियर होती है, गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए और गवर्नमेंट के स्टैंड के बाद क्लियर होगा कि आखिरकार किस तरह की स्थितियां बनी है। वहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें भगदड़ मचती हुई नजर आई है। बेंगलुरु में एक तरफ जश्न का माहौल था, विक्ट्री परेड के पहले यह भगदड़ मच गई है। भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर देखने को मिली है। हादसे में बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 11 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कुछ लोग ये आंकड़ा 17 कह रहे हैं, कुछ लोग 10 कह रहे हैं, कुछ 7 कह रहे हैं। अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन घायल 60 के करीब लोग हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मची है। बेंगलुरु में जश्न के दौरान भगदड़ की स्थितियां देखने को मिली हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जिस तरीके का हादसा देखने को मिला, अब इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन था। हालांकि क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को भी डिप्लॉय किया गया था, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। हो सकता है बीच बचाव के लिए आए हों। तो ये बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जहां भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट इन जान गंवा चुके लोगों के लिए और घायलों के लिए किस तरह का इनिशिएटिव लेती है। फिलहाल इस घटना में जिम्मेदार कौन है, अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है। आज
देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाद जिस तरह की ये घटना घटित हुई, उसके बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार क्या कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। पूरे कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम को कट ऑफ किया गया है, छोटा किया गया है, सिर्फ 10 मिनट तक कार्यक्रम चला और जैसे ही इंफॉर्मेशन उनको मिली है वो हॉस्पिटल की तरफ अब भाग रहे हैं। So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. What is at present? No, yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospital. No, I can't. Only 5,000 police personnel were deployed, sir. You said the crowd that came in was running into thousands, sir. Was No, this enough? it was not thousands, it was lakhs. No. See, Nodi. BJP is saying, sir, it was ನೋಡಿ an emergency. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ देयर बेस्ट, बट ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ये गलती से ये हुआ है, सिक्योरिटी फेल्यूर है सर। पूरा फेल्यूर। तो देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे के पूरे जो कार्यक्रम था उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और अब पुलिस प्रशासन का जो मूवमेंट है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ में संजय सिंह जी न्यूज रूम से सीधे जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपके पास आऊंगी वापस से। देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जिस तरीके की एक्टिविटीज अब देखने को मिल रही हैं, हालांकि हमें अपेक्षा पहले थी कि जैसे ही उन्हें भगदड़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वैसे ही ये एक्टिविटीज नजर आनी चाहिए थी, लेकिन डीके शिव कुमार अब कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर से वो बातचीत भी करेंगे। हालांकि वो डॉक्टर का जो कार्यक्रम है, जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का, उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना चाहते। जी देखिए, भले ही डी शिव कुमार अब कह रहे हो कि डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन जो हादसा होना था वो हो चुका है। पूजा आप देखिए कि धीरे धीरे 1, 2, 3 की संख्या बढ़ते बढ़ते कब 10 तक पहुंच गई है और ये संख्या कितनी बढ़ेगी अभी हमें और आपको पता नहीं है। अंदाज़ा ये है कि और ये ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि अभी घायलों की संख्या भी 20 से अधिक की बताई जा रही है। तो ये दर्शाता है कि ये एक बड़ा दुर्घटना है जिसको सरकार अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकती है। और जो बिल्कुल संजय, मैं आपसे समझूंगी कि देखिए प्लीज इस स्टेटमेंट को डिकोड कीजिए, क्योंकि डीके शिव कुमार बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपने पुलिस महकमे को कहीं ना कहीं किसी तरह से दोषी नहीं मानता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इस इवेंट को बेटर बनाने के लिए, मैं उन्हें किसी तरह का दोष नहीं दे सकता हूं। इस हादसे में कहां कौन सी गलती रह गई उस बात की हम जांच करेंगे और उसकी समीक्षा भी की जाएगी। इसे कैसे देखा जाए? जब भी कोई अगर इस तरीके का हादसा होता है जिसमें राज्य सरकार के लोग शामिल हैं, यानी सरकार के खुद के लोग शामिल हैं, मंत्री यानी डिप्टी सीएम खुद इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल यानी कि आप देखें कि वो भी इस इवेंट में थे कहीं ना कहीं। तो ये बड़े लोग हैं जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए हैं राज्य में, वो लोग इस इवेंट में शामिल थे। तो इसका मतलब कि साफ है कि इसमें सरकार का इवेंट था और सरकार इस इवेंट को प्लान कर रही थी, सरकार के ही हिसाब से ये इवेंट चल रहा था। तो दोषी भी सरकार ही हुई और सरकार दोषी मतलब पुलिस प्रशासन को ही दोष दिया जाएगा। अगर डी शिव कुमार ये कह रहे हैं कि प्रशासन दोषी नहीं है, पुलिस दोषी नहीं है, तो फिर कौन दोषी है? आखिर किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सुरक्षा किसके अधीन आती है? क्या ये कोई केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं कि इसके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र के पास है? ये राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि कितने लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, किस तरीके से उन लोगों को मैनेज करना है स्टेडियम में, और क्या उनके लिए आपने कोई पास का इंतजाम किया था? नहीं किया था तो स्टेडियम में जाने की क्या फर्स्ट कम
पहले आओ और पहले जाओ की स्थिति थी, इस कारण भीड़ ज़्यादा बढ़ गई और अचानक से भगदड़ मच गया। तो ये सब कुछ है, ये तो जांच का विषय है। इस पर मुझे लगता है कि एक न्यायिक जांच की जरूरत होगी कि आखिर ये घटना क्यों घटी और इसके लिए बिल्कुल, कौन और शायद से दोषी हैं। इसी जांच की बात विपक्ष भी लगातार कह रहा है। विपक्ष की तरफ से भी यही मुद्दा जो है वो बार बार रेज किया जा रहा है कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। फेलियर है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और बहुत बड़ा फेलियर है। उसके बाद जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये जरूरी है, विपक्ष को इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी न किसी की तो जवाबदेही होगी जो इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो आरसीबी फ्रेंचाइजी है उसके मालिक की जवाबदेही तय होगी या फिर राज्य सरकार जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी उनकी जवाबदेही तय होगी। आप देखें कि हमेशा जहां भी जो भी टीम आईपीएल जीतती है, अगर आप पिछले साल देखें तो जब बंगाल ने इस आईपीएल को जीता था वहां ममता बनर्जी थी शाहरुख खान के साथ, जो उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी है, वहाँ भी एक बड़ा इवेंट हुआ था। तो हर जगह इस तरीके के इवेंट प्लान किए जाते हैं, हर जगह ये इवेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये चूक क्यों हुई, तो ये तो जांच होगा कि चूक हुई है। ये जब सभी मान रहे हैं कि एक बड़ी चूक है सुरक्षा में, बिल्कुल ये वही बात हो गई संजय कि ताली की जिम्मेदारी आपकी है तो तमाशे की जिम्मेदारी किसकी होगी। जिस तरीके की घटना घटित हो गई है ये वाकई लोगों की जान को तमाशा बना करके रख गया है, प्रशासन ने भी और सियासतदानों ने भी। जी देखिए, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया, आपको पता है कि विराट कोहली इस देश के नहीं पूरी दुनिया के एक स्टार प्लेयर हैं और 17 सालों से एक टीम थी जो इंतज़ार कर रही थी इस इवेंट को जीतने का। 18वें साल में वो इस इवेंट को जीतती है। एक बड़ा प्लानिंग होता है। कल अहमदाबाद में ये मैच हुआ, अहमदाबाद में करीब 12 बजे के करीब ये मैच खत्म हुआ। आतिशबाजियाँ बंगलौर में शुरू हुई और बंगलौर में कल ही रात में लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। उस समय पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था लोगों को हटाने के लिए। तो ये तो कल से ही पता था आपको कि आज जब वो टीम आएगी और एयरपोर्ट से जब लेके आप उसको आएंगे, विधानसभा लेके जाएंगे, फिर विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम लेके जाएंगे, तो ये एक बड़ा इवेंट आप प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और यही कारण था कि लोग स्टेडियम आते आते वो जो संख्या हजारों की थी वो लाखों में बदल गई और लोग स्टेडियम के अंदर जाने के लिए गेट पे इकट्ठे हो गए। गेट पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जो गेट को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। सुरक्षा बल उसमें जो है किस तरीके का रोल कर रहे थे, क्या उन्होंने लाठीचार्ज किया जिसके बाद भगदड़ हुआ या फिर भगदड़ होने के बाद लाठीचार्ज किया, किस तरीके से भगदड़ हुआ ये भी अभी जांच का विषय सामने आएगा। और उस भगदड़ में इतने लोग घायल हो गए, इतने लोगों मर गए, उसके बाद भी ये इवेंट चलता रहा और इवेंट खत्म किया गया है। अब जाकर जब आपको पता चला कि इसमें इतने लोगों की मौत हो गई, तो ये सब कुछ सवाल है। विपक्ष इस सवाल को पूछना शुरू भी कर दिया है कि ये घटना किस तरीके से घटी और क्या है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब भी आने चाहिए और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी घटना होती है तो आप उसकी जांच कराइए, दोषी लोगों को सजा दीजिए। इसमें कौन दोषी है, ये दोषी और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा कर